lungs and from lung into the tissue. So up to now so today we will discuss transport of carbon dioxide and oxygen uh, from blood or from tissue into the lungs and from lung into the tissue. So up to now we discussed that how oxygen or carbon dioxide diffused from alveoli into the capillary blood and then from blood into the uh, tissues or tissue extracellular fluid, and then from there carbon dioxide is entering into the blood. So now we will transport that once carbon dioxide or oxygen enter into the blood, then how this carbon dioxide and oxygen it is transported into the lungs for exhalation, that is carbon dioxide, and how oxygen is move or transported from lung alveoli towards the टिश्यू और सेल. सो हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे. So open the slides and focus on the first one, that is transport of oxygen and carbon dioxide. So normally blood transport gases, that is carbon dioxide, oxygen, that is the two most important gases. That is especially carbon dioxide that is produced during normal metabolic process, and oxygen that is used in the cellular respiration. So exchange of these gases, that is carbon dioxide and carbon dioxide and oxygen, that take place between tissue and blood, then from blood and enter into the alveoli. So overall exchange take place through chemical reactions. Not it is not a simple reaction that just like a tube, carbon dioxide will move inside into the tube, and then it will move along the pipe, and then it will exhale, and same for oxygen. But basically this transport, it is a chemical process. Clear chemical reaction occur between oxygen and the cells, or that is through hemoglobin and carbon dioxide. Again it react with cellular component, and from there it carried or transported into the lungs. So बेसिकली जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, इसकी ट्रांसपोर्ट जो है ये एज सच सिंपल नहीं है. ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, कि अटैचमेंट जो है आरबीसी के साथ ऑक्सीजन की वो इम्पोर्टेंट है. ये भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, ठीक है. और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी जो वहाँ से रिमूवल है वो भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू है. So first of all we will discuss the transport of oxygen. Clear? So जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर आप लोग आ जाएं. सो दैट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है. नॉर्मली अगर आप लोग देखें, सो ऑक्सीजन जी इसकी जो हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस की थी, सो ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? सो अगर सॉल्युबिलिटी इसकी कम है, सो अराउंड अबाउट 1.5% ऑफ द इनहेल्ड ऑक्सीजन, दैट इज एन एलोलाई. क्लियर? जब हम इनहेलेशन प्रोसेस करते हैं, सो एलोलाई में जब ऑक्सीजन की सिचुएशन होती है, ऑक्सीजन एंटर होता है ब्लड में, एंड carbon dioxide exhale from blood into the alveoli. So कार्बन डाइऑक्सीजन जब हम एंटर होता है ब्लड में, के ब्लड कैपिलरीज में, तो राउंड अबाउट 1.5% या 2% जो है, किसी बुक्स में 2% लेके हैं. सो 2% ऑफ द इनहेल ऑक्सीजन इट विल डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, एंड यू नो दैट blood plasma around about 75% of the blood plasma that is water. So ऑक्सीजन की वाटर सॉल्युबिलिटी कम है. सो बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें जो ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में जाता है, दैट इज राउंड अबाउट फ्रॉम 1.5 टू 2% जो है ये डिजॉल्व फॉर्म में जाता है. बाकी जो 98 या 98.5% ऑक्सीजन है, इट इज almost combined with hemoglobin, and then through a chemical reaction, and then it is transported in the form of oxyhemoglobin. Clear? So नॉर्मल उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि जो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्लियर, it carry round about 20 equivalent to 20 ml of gaseous oxygen. अगर 100 ml
का मतलब ये है 100 ml जो है उसको हम डिसिलेटर भी कहते हैं, ठीक है। सो 100 ml जो है 1 डिसिलेटर, इसमें जो है जो अगर हेमोग्लोबिन का हम कर लें कि 1 ग्राम ऑफ द 1 ml ऑफ द ब्लड कंटेन राउंड अबाउट आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग जो है ग्राम होते हैं इसमें हेमोग्लोबिन का, ठीक है ना, 1 पॉइंट नहीं कम होते हैं। सो राउंड अबाउट जो 100 ml है, सॉरी 100 ml या 1 डिसिलीटर में हमारे पास जो हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होती है 100 ml में, वो हेल्दी मेल में जो है फ्रॉम 13 to 18 ग्राम होती हैं, ठीक है, और फीमेल में दैट इज फ्रॉम 12 to 16 ग्राम। सो 1 ग्राम जो है इसका ये आई थिंक 1.5 या राउंड अबाउट 1 ml जो है उसके साथ इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। और 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन इट हैविंग द एबिलिटी टू कैरी राउंड अबाउट 1.5 ml ऑफ ऑक्सीजन। सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा एक मसला था। सो इस तरह है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि 1 डिसिलीटर मीन 100 ml ऑफ ब्लड दैट कैन कैरी अराउंड अबाउट 20 ml ऑफ गैसियस ऑक्सीजन। अब जो है 100 ml में जब हम हीमोग्लोबिन हमने चेक भी किया था, अगर आप लोगों को लैब में याद हो, ठीक है, तो 100 ml में जो है अराउंड अबाउट जो मेल में है दैट इज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन फ्रॉम 13 to 18 एंड फीमेल में जो है दैट इज 12 to 16। अब 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन एट हैविंग द बाइंडिंग कैपेसिटी to oxygen that is round about 1.5 ml। so जो 100 ml है ये रफली जो है आज जिस तरह हमने पहले बताया कि 20 ml तक ये ऑक्सीजन इसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। सो अगर आप लोग देखें अब डिजॉल्व जो है डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन दैट इज राउंड अबाउट 1%। इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 20 ml जो 0.3 ml है ये हमारे पास डिजोल्व फॉर्म में जाता है। मीन जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन on the basis of high partial pressure it will diffuse into the blood plasma and it will oxygen will dissolve in the blood plasma। लेकिन ये dissolve ऑक्सीजन जो है ये 0.3 ml तक होता है। बाकी जो रिमेनिंग 19.3 ml ऑफ ऑक्सीजन है it will bind with hemoglobin। so ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म में चला जाएगा। इसी तरह जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है, ठीक है, ये बेसिकली आरबीसी में हेमोग्लोबिन के साथ होती है, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि RBC is nothing but it is just bag of hemoglobin। so ये hemoglobin के bags हैं and round about 480 million hemoglobin molecule is present in a single RBC and each are hemoglobin molecule at having binding capacity to 4 oxygen molecule। so एक ऑक्सीजन सॉरी एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है ये 4 ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। सो एक सेल जो है ये 1600 मिलियन राउंड अबाउट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो आरबीसी है इसमें एनारोबिक ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है क्योंकि इसमें जो है कोई एंजाइम जो है राइबोसोम एंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्लियर। सो अब जो ऑक्सीजन जो है ये बेसिकली हेमोग्लोबिन में हीम पार्ट के साथ जहां पर जो है आयरन मॉलिक्यूल होते हैं उसके साथ जो है इसकी अटैचमेंट होती है। सो ना जो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इसका जो बाइंडिंग है या एक दूसरे के साथ oxygen molecule is easily bind with hemoglobin molecule and then it is vice versa, that is easily dissociate from the hemoglobin molecule also। so the binding of oxygen with hemoglobin molecule that is called it will lead to the formation of oxyhemoglobin। so 95% of the inhaled oxygen that is bind with what with hemoglobin molecule and what it will be in the form of oxyhemoglobin and then it will transport it from alveoli toward the tissue in the in oxyhemoglobin form। the remaining जो है that is round about 2% है या 1% that is in the form of dissolved form। so जो
95% ऑक्सीजन है। जिस तरह ये हेमोग्लोबिन के साथ इसके अटैचमेंट होते हैं, ठीक है। अगर हेमोग्लोबिन के साथ अटैचमेंट हो रही है, so you know hemoglobin is packed inside the RBC, so this oxygen is in trap form, mean that is inside the RBC, and the 1 to 2% जो ऑक्सीजन होता है it is dissolved in the blood plasma, so this will easily diffuse out, that is from the ब्लड। क्लियर। सो जो डिजॉल्व फॉर्म में है नॉर्मली इसके जो है डिफ्यूजन अर्ली होती है एज कंपेयर टू द ट्रे फॉर्म विद हेमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अब जो है ऑक्सीजन वो डिफ्यूजन में, अब बाइंडिंग जो है उस पर इफेक्ट जो है क्या होगा। सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन इज बेसिकली बेस्ड और इट डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हायर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, then more will be the binding effort of oxygen with the hemoglobin molecule or heme part of the hemoglobin molecule। so normally जो जब भी अगर आप लोग देखें ब्लड आता है टुवर्ड द लंग्स। क्लियर। जब लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो उसमें जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू द एलुलर ब्लड, सॉरी एलुलर एयर। सो एलुलर एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, ठीक है। सो डिफ्यूजन, फर्स्ट वन दैट इज डिफ्यूजन होगी। अब जब डिफ्यूजन होगी सो ऑन द बेसिस ऑफ, अब मॉलिक्यूल जो है ब्लड में ज्यादा डिफ्यूज होंगे कैपिलरी ब्लड में जो एलुलाई में है, ठीक है। सो वहां पर जब ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा सो चांसेस ऑफ व्हाट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन it will be higher। so what will happen, this oxygen will bind with hemoglobin molecule here and then reduce hemoglobin molecule, it will be reduced form में होता है hemoglobin molecule, so it will be oxidized into oxy hemoglobin by binding with हेमोग्लोबिन। क्लियर। क्योंकि इसे टिश्यू से ब्लड जब आएगा तो ऑटोमेटिकली वहां से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव हो जाएगा सो दिस हेमोग्लोबिन इन द रिड्यूस फॉर्म, जब ये एलोलाई में आएगा तो यहाँ पर ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ इसके अटैचमेंट होगी एंड इट सेल दिस हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विल ऑक्सीडाइज टू ऑक्सी हेमोग्लोबिन। so oxygen जो है with high partial pressure bind with a large amount or high amount of oxygen almost 100%। अगर ऑक्सीजन की partial pressure high है, ठीक है, so binding जो है ये 100% होगी। अगर इसका जो है ऑक्सीजन का partial pressure कम होगा, ठीक है, so binding जो है वो फिर कम होगी इसी हिसाब से। so that is directly proportional to the partial pressure of oxygen। इसके बाद जो है दैट इज ग्रेटर पार्शियल प्रेशर that will more will be the binding effort of the oxygen with hemoglobin molecule। so dissolve जो ऑक्सीजन हमने डिस्कस किया था कि 1 to 2% dissolve फॉर्म में होता है एट अनलोड सैंपल थ्रू डिफ्यूजन इन द टिश्यू। क्योंकि ये सैंपल फॉर्म में होता है, ठीक है, ट्रैप नहीं है, so it will easily diffuse out from the blood capillary into the extracellular fluid and then from there it will enter into the cells। so जो नॉर्मल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, दैट इज अराउंड अबाउट, अगर इसमें जो है सैचुरेशन की बातें होती हैं कि अगर नॉर्मल जितने भी अवेलेबल, फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड ब्लड क्या होगा, सैचुरेटेड ब्लड mean with oxygen। clear point of view से so saturated mean the almost all the hemoglobin molecule are occupied by oxygen molecule and it will based on high partial pressure। the partial pressure of oxygen that is high, so almost all of the hemoglobin molecule it will oxidize to oxy hemoglobin। clear। normally जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, उसका जो अगर आप लोग देखें वहां पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज राउंड अबाउट 40 मिलीमीटर ऑफ जो है मरकरी। सो 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर भी जो है जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती है दैट इज 75%, मीन स्टिल 75% ऑफ द ऑक्सीजन इट इज bind with the hemoglobin molecule। so it is a reserve
forward for the oxygen consumption. In case of any emergency, any exercise और stressful condition, अगर stress है या कोई और condition है तो आपके पास 75% जो है already hemoglobin saturate है, ठीक है, that is deoxygenated blood. जो deoxygenated blood जिसका partial pressure of oxygen जो है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, तब भी 75% आपके पास हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सैचुरेट है। अगर आपको कोई इमरजेंसी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपकी इंक्रीज हो जाती है, सो ये जो 75% है ये कंज्यूम होता है और पार्शियल प्रेशर फिर वहां से फिर डाउन होगा, ठीक है। सो राउंड अबाउट जब ऑक्सीजन की जो है पार्शियल प्रेशर अगर एक्स्ट्रा सेलुलर अगर एलुलर एयर में या एटमॉस्फेरिक एयर में 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक होता है, ठीक है। सो उसकी वजह से जो है रिस्पायरेशन या सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर 60 से या 40 तक ही आ जाएगा फिर जो है इसकी सैचुरेशन इफेक्ट होगी, दैट विल बी 75%। अगर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक आएगा तो इसकी फिर फर्दर जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है या ऑक्सी हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन और रिलीज होंगे, दैट विल अनलोड फ्रॉम द हेमोग्लोबिन। सो हम बात कर रहे थे कि डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होता है इट विल इजीली unloaded or that is easily diffused from the blood into the extracellular fluid. However जो bind form में है, that is in the oxy hemoglobin form, it will diffuse on the basis of what, on the basis of partial pressure, और partial pressure basis पर हम इसके जो है अनलोडिंग होगी या रिलीज होगी, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होगी। नॉर्मली जो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है इस पर 75% ऑफ द ऑक्सीजन एट इज जो है हेमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। सो इससे अगर हम पार्शियल प्रेशर और कम होगा, ठीक है, मीन 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक आ जाएगा टिश्यू पॉइंट साइड पर या सेलुलर साइड पर, तो फिर जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगी, मीन ऑक्सीजन और रिलीज हो जाएगा, तो मे बी इट विल 50% पर आ जाएगा या 40% पर आएगा, तो दैट विल डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, ऑफ द ऑक्सीजन। सो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि नॉर्मली हेमोग्लोबिन इसमें हमने एक डिस्कस किया, दैट इज पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा बाइंडिंग ज्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर अगर कम होगा बाइंडिंग कम होगी, और ये एक मैकेनिज्म है। अगर आप लोग देखें सेलुलर जो है एलुलर साइड पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, ब्लड में कम है, तो ऑक्सीजन विल बाइंड विद द capillary blood that present over the surface of the alveoli, so oxygen will form or it will combine with hemoglobin in form oxyhemoglobin। अब जो है अगर यहाँ से ब्लड पंप होता है सेलुलर या टिश्यू साइड पर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, सो व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन विल डिसोसिएट, फिर सेलुलर कंजम्पशन और कम होगी वहां पर, तो वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर और कम है, तो यहाँ से डिसोसिएशन होगी। क्लियर? सो दीज आर फैक्टर्स दैट इफेक्ट व्हाट, दैट इफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस ऑक्सी हेमोग्लोबिन। सेकंड जो है एसिडिटी ऑफ द मीडियम जो है, अगर एसिडिटी बॉडी का या बॉडी फ्लूइड ब्लड का इंक्रीज होगा तो उसके ऑक्सीजन बाइंडिंग या ऑक्सीजन जो है डिसोसिएशन या रिलीज पर क्या इफेक्ट होगा। सो व्हेन एसिडिटी इंक्रीज मीन दैट इज पीएच डिक्रीज, सो एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज, मीन जब ब्लड जो है वो एसिडिक होगा, सो ऑक्सीजन जो है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, मीन इन केस अगर ब्लड जो है 75% नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में जो है हम जब कहते हैं कि 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर जो है स्टिल 75% ऑफ द हेमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। क्लियर? सो अगर हम नॉर्मल 7.4 से पीएच को कम करेंगे 5 तक लेके आएंगे या इस तरह, जो 75% ऑलरेडी हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड है, ठीक है, या 75% हेमोग्लोबिन सैचुरेट है विद ऑक्सीजन, इट विल रिलीज ऑक्सीजन, सो जो है फर्दर सैचुरेशन कम होती जाएगी। सो एसिडिटी का जो इफेक्ट है
वो जो है ऑक्सीजन बाइंडिंग पर जो है क्या है, इट डिक्रीज द ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी है वो कम होगी एंड इट विल व्हाट, इट विल इनहांस द अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम, क्या है, इट डिक्रीज द ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी है वो कम होगी एंड इट विल व्हाट, इट विल इनहांस द अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन। क्लियर। अगर आप लोग देखें अब बॉडी में अगर कोई बंदा जो है काम कर रहा है, ठीक है, मोस्टली स्केलेटल मसल्स आर इन्वॉल्व। स्केलेटल मसल के दौरान जो है दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो रही है एज अ बाई प्रोडक्ट, सेकंड जो है वहां पर हीट प्रोडक्शन हो रही है, देन जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, वहां पर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रही है। सो सेल के अंदर दो चीजें जो है वो क्या है, दैट इज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन एंड कार्बनिक एसिड formation. These carbonic acid from the muscle cell, it will diffuse into the extracellular fluid. From here, it will what, diffuse into the RBC. So RBC या overall जो है ब्लड का जो फेज है वो एसिडिक होगा। जब एसिडिक होगा, दिस एसिडिक फेज विल व्हाट, इट विल promote what, it will promote the release of oxygen from the hemoglobin molecule and more oxygen will be available for cellular respiration. So acidity जो इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन जो है रिलीज होगा फ्रॉम हेमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, इट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एसिडिटी। क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए। So then another factor that is affect the binding capacity of oxygen with hemoglobin molecule, that is partial pressure of carbon dioxide। कि partial pressure of carbon dioxide का ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का आपस में जो बाइंडिंग कैपेसिटी या एफिनिटी उस पर क्या इफेक्ट है। क्लियर। सो partial increase in the partial pressure of carbon dioxide, it will what, it will affect the what, it will affect the binding of hemoglobin with oxygen molecule। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है इटसेल्फ एट व्हाट, इट विल बाइंड विद द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो इसके अपने जो है एफिनिटी होती है। क्लियर, दैट इज उसको जिस तरह हम कंपेटिटिव एगोनिस्टिक इफेक्ट होते हैं, एक सेम बाइंडिंग साइड के लिए मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड इट विल compete for binding with hemoglobin molecule। क्लियर, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के लिए इसकी जो है कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगी बाइंडिंग के लिए। सो नॉर्मली अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज है, ठीक है, सो इट विल व्हाट, इट विल डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ व्हाट, ऑफ द ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल रिलीज फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। सो अगर टिश्यू लेवल पर आप लोग जाएं, ठीक है, टिश्यू या सेलुलर साइड पर, सेलुलर साइड पर ऑलरेडी सेलुलर रिस्पायरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यह एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, वहां पर एसिड फॉर्मेशन होती है, साथ में हीट प्रोडक्शन होती है। ठीक है। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज है, so it will what, it will decrease the binding affinity, it will promote the dissociation of what, or dissociation of oxygen from the hemoglobin molecule। so oxygen will unload from hemoglobin molecule, सिंपली जो है ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से, एंड नाउ दिस ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर सेलुलर यूज और सेलुलर रिस्पायरेशन। इसी तरह जो एक और फैक्टर है दैट इफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, और दैट इज द अनलोडिंग ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, दैट इज टेम्परेचर। So increase in temperature release oxygen from the hemoglobin molecule, mean that is it will enhance or promote the unloading of oxygen molecule from what, from hemoglobin molecule। so अगर आप लोग देखें मेटाबॉलिकली जो एक्टिव सेल्स हैं, दैट इज स्केलेटल मसल्स हैं, आइदर इट इज हेपेटोसाइट्स हैं, ठीक है, वहां पर जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब यह है कि वहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस एटीपी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन है, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल हो रही है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो है एटीपी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्योंकि एटीपी जो है सेलुलर फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी ब्रेक डाउन अगर हो रही है, ठीक है, या कैटाबॉलिज्म हो रहे हैं, तो वहां पर दो चीजें जो है ये प्रोड्यूस होंगी, दैट इज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड
ATP and temperature. Clear? So carbon dioxide जो है it also affect the binding of hemoglobin with oxygen molecule. Second जो heat produce हो रही है it also what it will promote the dissociation of hemoglobin from the so oxygen molecule or oxygen from the hemoglobin molecule, mean it promote unloading of hemoglobin. जो हेमोग्लोबिन है उसकी अनलोडिंग करेगा, जो ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड है वो रिलीज हो जाएगा. सो these are various factors that affect the binding of hemoglobin with oxygen molecule. इसमें जो एक और फैक्टर है, ठीक है, वो बेसिकली जो है दैट इज 2,3 by phosphoglycerate, that is BPG. क्लियर? तो इसको बाई फास्फोग्लिसरेट भी कहते हैं, ठीक है. सिंपल डाई जो है उसको क्या कहते हैं आप, बाई. सो ये है क्या चीज बेसिकली जो 1,6 फॉस्फेट जो ग्रुप है दैट एडेड इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसको ये आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से जो ग्लाइकोलाइसिस है ये इसमें होता है, ठीक है. सो नॉर्मली ड्यूरिंग एटीपी फॉर्मेशन जब ग्लाइकोलाइसिस होते हैं तो वहां पर जो है 2,3 बाई फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बनते हैं. अब जब भी 2,3 बाई फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, तो इसकी एफिनिटी जो है ये हेमोग्लोबिन के लिए ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सो क्या होगा, क्योंकि सेलुलर साइड पर ऑलरेडी ऑक्सीजन जो है पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है. सेकंड जो है वहाँ पर फास्फोग्लिसरेट जो है इसके कंसंट्रेशन से ग्लाइकोलाइसिस हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है बीपीजी दैट इज बाई फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बन रहे हैं. सो इट विल रिप्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. अनलोडिंग होगी किस चीज की, हेमोग्लोबिन की फ्रॉम ऑक्सीजन की फ्रॉम हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. सो हेमोग्लोबिन जो है अपना ऑक्सीजन वहाँ पर रिलीज करेगा और वहाँ पर जो है बीपीजी जो है दैट इज बाई फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल ये हेमोग्लोबिन के साथ इसकी बाइंडिंग होगी. सो ये एक और फैक्टर है दैट इफेक्ट द अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. स्पेशली सेलुलर साइड पर, टिश्यू साइड पर आप लोग इसको कंसिडर करें तो इजी होगा, आप लोग इजीली समझ जाएंगे. इसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, that is the oxygen affinity of fetal and adult hemoglobin. कि ऑक्सीजन जो है फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो उसका जो है कोई इफेक्ट होगा कि नहीं किस पर, ऑक्सीजन अनलोडिंग पर. तो एक चीज ध्यान में रखिए, जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन है इसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन ए. क्लियर? जो फीटल हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हेमोग्लोबिन एफ, दैट इज एफ फॉर फीटल हेमोग्लोबिन. अब अगर स्ट्रक्चर बेसिस पर आप लोग चले जाएं, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये चेंज होता है फ्रॉम फीटल हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है ये चेंज है, from the normal hemoglobin. And fetal hemoglobin at having what, at having 10 times more binding capacity for oxygen as compared to what, as compared to maternal or normal hemoglobin A. जो ही ब्लड सर्कुलेट होगा, ठीक है, पंप होगा एंड इट विल मूव फ्रॉम maternal heart toward the chorionic villi. सो कोरियानिक विलाई इस तरह होते हैं, ये एक जंक्शन होता है, ठीक है, वेयर द cluster of capillaries from the mother side blood, it will in close association with the cluster of capillaries from fetus. so ये दोनों आपस में बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन में होते हैं. फीटल सर्कुलेशन जो है उसमें जो है फीटस ब्लड जो है मूव कर रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल में, कैपिलरीज में. इस साइड पर जो है मैटरनल ब्लड जो है मैटरनल जो कैपिलरीज हैं उसमें मूव कर रहा है. अब जो फीटल ब्लड है उसमें जो आरबीसी है वहां पर हेमोग्लोबिन एफ है, ठीक है, और उसकी जो एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन वो 30% जो है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैटरनल और नॉर्मल हेमोग्लोबिन. जो ही ब्लड वहां पर पंप होगा, ठीक है,
मतलब वहां पर सर्कुलेट होगा कोरियानिक वेलाई में, तो वहां जो फीटल सर्कुलेशन है, ठीक है, फीटल हेमोग्लोबिन ये अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन को, क्लियर, और ऑक्सीजन मदर ब्लड से जो है वहां से डिफ्यूज होके बाइंड हो जाएगा फीटल hemoglobin के साथ. So it will what, it will affect overall, or it will help the unloading of oxygen from maternal hemoglobin A. और ये बेसिकली रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उसने इस तरह बनाया है, वरना फिर अगर दोनों साइड पर एक जैसा हेमोग्लोबिन होता तो फिर जो है इसका स्चुरेशन जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, और फीटल जो है उसमें इस्केमिक कंडीशन या जो है हिपोक्सिक कंडीशन की वजह से अर्ली डेथ होती. सो फीटल हेमोग्लोबिन जो है उसकी ऑक्सीजन जो है के लिए एफिनिटी जो है ये 30% ग्रेटर ज्यादा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल हेमोग्लोबिन. सो oxygen will what, it will unload from the maternal hemoglobin A, and it will bind with what, it will bind with the fetal hemoglobin F. इसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है. सो रेस्टिंग कंडीशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, 100 ml ऑफ द deoxygenated blood, it contain round about 35 ml equivalent of carbon dioxide, clear. इसमें 35 ml जो है equivalent gaseous carbon dioxide होता है, ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट है इन द ब्लड ये 3 फॉर्म में होता है, ठीक है. ऑक्सीजन का 2 फॉर्म में था, एक डिजॉल्व और दूसरा जो है बाइंड विद हेमोग्लोबिन. जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है ये 3 डिफरेंट फॉर्म में होते हैं. एक जो है डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है. सो ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ये ज्यादा है, ठीक है. अगर हम जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल पर प्रोड्यूस हो गए हैं, अब उसने लंग्स की तरफ आना है. सो लंग्स की तरफ जब ये आएगा तो ये 3 जो है डिफरेंट रूट यूज करते हैं. फर्स्ट वन जो है ये डिजॉल्व फॉर्म में आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी उसको हम कहते हैं, सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन. So about 7% of the carbon dioxide it will what, it will dissolve in the plasma. In lung it will diffuse into the alveolar air and then exhale. So 7% जो है ये डिजॉल्व फॉर्म में आएगा, ठीक है. अगर आप लोग 35 ml गैसियस ऑक्सीजन जो है इसका 7% आप लोग कर लें, ठीक है, तो आप लोगों के पास पता नहीं कितना परसेंट आएगा कि कितना ml जो है ये डिजॉल्व फॉर्म में आएगा इन द प्लाज्मा. सेकंड जो है कार्बामिनो कंपाउंड है, ठीक है. कार्बामिनो कंपाउंड बेसिकली दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड with अमीनो ग्रुप्स ऑफ द अमीनो एसिड. जो अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप है NH2 जो है उसके साथ ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में आता है, एंड दैट्स फॉर्म व्हाट, इट फॉर्म कार्बामिनो कंपाउंड. राउंड अबाउट जो 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज कैरिड टुवर्ड द alveoli and then exhale it is in the कार्बामिनो कंपाउंड फॉर्म में आता है, ठीक है. और अगर आप लोगों को पता हो, याद हो, ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है कि ब्लड में जो एबंडेंट अमीनो एसिड या प्रोटीन है दैट इज हेमोग्लोबिन, क्लियर. सो मोस्टली जो हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, 23%. so mostly almost all of this carbon dioxide that is our 23% it will carried along with what, along with hemoglobin towards the lungs. तो ये हेमोग्लोबिन के साथ इसकी अटैचमेंट होते हैं, ठीक है, एंड देन इट विल फॉर्म कार्बामिनो हेमोग्लोबिन. इसको HbCO2 फॉर्म में ये आएगा. सो फर्स्ट डिजॉल्व फॉर्म में आता है, ठीक है. सेकंड जो वो 7% डिजॉल्व फॉर्म में आता है. देन 23% जो है ये कार्बामिनो कंपाउंड फॉर्म में आता है. जो हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल ब्लड में जो है सबसे ज्यादा जो है वो हेमोग्लोबिन है, ठीक है. सो ये हेमोग्लोबिन के साथ इसकी बाइंडिंग होगी एंड देन इट विल प्रोड्यूस कार्बामिनो हेमोग्लोबिन. और जो 23% कार्बन है वो कार्बामिनो हेमोग्लोबिन फॉर्म में आएगा. अगेन जो है पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस है, ठीक है, उस बेसिस पर ये एक्सहेल हो जाएगा, इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम होते हैं और जो ब्लड है उसमें ज्यादा है. तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पर इसकी डिसोसिएशन होगी एंड देन इट विल एक्सहेल.
इसी तरह जो है जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनो हेमोग्लोबिन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, so it will promote the formation or it will promote the combination of what of carbamino hemoglobin molecule। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है तो ये जो है डिसोसिएशन होगी उससे। जो थर्ड फॉर्म है ठीक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। क्लियर? सो राउंड अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एक्सहेल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। क्लियर? तो बाइकार्बोनेट फॉर्म में इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है, अभी हम बार बार डिस्कस भी करते हैं कि सेलुलर साइड पर चूंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, साथ जो सेल साइटोप्लाज्म है वहां पर जो है वाटर भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो व्हाट विल हैपन, carbon dioxide will what, it will diffuse out from the cell and it will enter into the uh, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इस ये अब ब्लड कैपिलरीज में, वेनस ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा। वेनस ब्लड कैपिलरीज में आपके पास जो है आरबीसी है, ये आरबीसी में अब इसकी डिफ्यूजन होगी। अब आरबीसी में डिफ्यूजन होगी तो आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसमें जो है एक तो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, वहां पर जो है कार्बनिक एनहाइड्रेज जो है एंजाइम होते हैं, वहां पर वाटर है। सो दिस विल व्हाट, इट विल प्रोमोट और इट विल facilitate the reaction of carbon dioxide with water and it will produce what, it will produce कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड की डिसोसिएशन हो जाती है, सो बाइकार्बोनेट, नाउ बाइकार्ब और हाइड्रोजन, ठीक है, सो बाइकार्बोनेट फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है, जब लंग्स में आएगा सो लंग्स में अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बनिक एसिड एंड देन इट विल डिसोसिएट। कार्बनिक एसिड की जो है और डिसोसिएशन होगी, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सो कार्बन डाइऑक्साइड विल एक्सहेल आउट फ्रॉम lungs into the sorry from blood into the alveoli and from where it will exhale there into the atmosphere।